اللہ احد کی جاویداں تفسیر کرنے کو نواسوں سے تیرے سیکھے کوئی آداب قرآنی تیری زلف عقیدت کے اسیروں میں نظر آئے معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کو سکھایا تھا تیری چشم کرم نے حسن آئین جہاں بانی رموز کنت و کنزن کا حقیقی راز نہ تو ہے ازل سے تا ابد اللہ کا فیض رواں تو ہے اس پیغمبر اسلام شفیع روز و شمار محبوب پروردگار محبت وحی الہی زینت عرش کی بریائی اندھی آنکھوں کی دیا بند کانوں کی دلا بند دلوں کے رہنما ہم غریبوں کے آقا و ساری کائنات کے دولہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار غور بار میں محبت سے پورا مجمع جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللهم صل على سيدنا وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حصول خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، ہمارا جشن سیدی سالار مسعود غازی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں شہر کے اور علاقے کے مقتدر علماء اور ہمارے اسلاف یہاں تشریف فرما ہیں. ایک یہ بات دیگرے آپ نے دو چار لوگوں سے تھوڑی تھوڑی دیر چند باتیں اور عقائد سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ ارضہ اللہ کی شان میں قراءت کی پیش کرتے ہوئے ہمارے نہایت کرم فرما خطیب اہل سنت عالم حق بیاں حضرت اللہ مولانا عطا الرضا صاحب قبلہ نے بڑی جامع گفتگو فرمائی اور ہم سب سن کر کے محظوظ ہو رہے تھے، لیکن وقت کی قلت ہے اور اس میں یہ انتظام پھر کھانے پینے کا انتظام، ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے. کھانا مل جائے، نیاز مل جائے، ڈیک کی ڈیک صاف ہو جائے تو جلسہ تو ہوتا رہے گا. ہم لوگوں کا بھی وہی حال ہے جس طرح سے ہے. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روئے بلالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہاں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو. تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج ہماری آپ کی جو بے غیرتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم اور آپ سب لوگ یہاں مل کر کے پورے میرا روڈ والے غازی جتنے کیٹرس کے حضرات ہیں اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، جس طرح سے دامے دل میں قدم سکنے اس میں حصہ لیا، ہم لوگ سب لوگ مل کر کے چلائیں اور یہیں چلاتے چلاتے کسی کی روح بھی نکل جائے، لیکن کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر پوری رات چلائیں، درخت کا ایک پتا پھٹ نہیں سکتا. لیکن اس کی شان وحدہ لا شریک ہی دیکھیں کہ ایک ننھا سا دانہ زمین میں بو دیا جاتا ہے تو زمین میں اپنی حیثیت کو وہ مٹا دیتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، وہ دانہ اپنی حیثیت کو زمین میں مٹا دیتا ہے اور وہ ننھا سا پودا زمین کی چھاتی کو چیر کر کے نکلتا ہے اور اس خدائے وحدہ لا شریک کی وحدہ لا شریکی کی گواہی دیتا ہوا. آج ہم اور آپ یہاں پر ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا. سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. جب مسلمان رکھ دیا ہے، ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے. اور جب اسلام کے ماننے جو اس کے نزدیک کے پیارا دین ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، وہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور کہیں فرما رہا یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اپنی اولادوں کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. آج کتنی کثیر
रकम खर्च करके ये इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ का जो जलसे का माहौल होता हो, जिस तरह से कि ये इंतज़ाम जलसे की शक्ल नहीं है, ये शादी ब्याह का मंडप है। जिस तरह से लगाया जाता है कि लोग आते रहें, खाते रहें, जाते रहें, हम बैठे रहें, ये पैसा जिस तरह से हम बहा रहे हैं, हमें कल अल्लाह के हुजूर में जवाब देना पड़ेगा। ये आप सोचते हैं हम बच जाएंगे, वो हम ऐसे ही वो खंजड़ी बजा रहे हैं कि नहीं नहीं हम बच जाएंगे, और वो नारा लगाते हैं हम जन्नत में चले जाएंगे, वो दूल्हा कोई बनेगा, हम बाराती होंगे चले जाएंगे। वो तो जब पिटाई कुटाई होगी और जब वो पहुंच करके वहां पहुंचेंगे तब एहसास होगा। आंखें फैदा बरेकल बसरो, जब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हवा मंसूरा, जब वो सब राख की शक्ल में उड़ जाएगा। आज जो लोग खुश होते हैं ना कि हमने किसी को रमजान में इफ्तार पार्टी करवा दिया है, दिन भर रोजा तो रखते नहीं है, पूरे दिन किसी से मिलते भी नहीं है, और उसके बाद हाल ये होता है शाम को नमाज असर से पहले भी निकले या असर बाद निकले, उनसे बड़ा कोई रोजेदार जमाने में नहीं लग रहा है। इफ्तार पार्टी फला साहब की तरफ से हो रही है, अब वो इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं या किसी या गरीब को खाना खिला रहे हैं या कपड़ा दे दिए, ज़कात निकाले किसी तरह से। अब चूंकि जब उनसे किसी मालदार आदमी से ज़कात की बात करो तो वो कहते हैं ना हम ऐसे ही निकालते रहते हैं, बेहिसाब देते रहते हैं। अबे तुम कौन होते हो बेहिसाब निकालने वाले? अल्लाह ने हर चीज को हिसाब से दिया है। वाह वाह। हमारी नमाजें भी 5 वक्त की हैं। जोहर में 2 रकात, जोहर में 4 रकात फर्ज है, फजर में 2 रकात फर्ज है। अब अगर कोई सोचे कि नहीं फजर में हम 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ेंगे फर्ज, तो 4 रकात के चक्कर में 2 रकात का सवाब भी चला जाएगा, गुनाह भी हो जाएगा। अगर कोई सोचे कि नहीं हम असर में 8 रकात पढ़ेंगे, असर में 4 रकात फर्ज है, कोई सोचे हम 2 ही रकात पढ़ेंगे, अल्लाह ने सारी चीजों को हिसाब से दिया है। फजर में दिया है 2 रकात फर्ज है, जोहर में 4 रकात फर्ज है, मगरिब में 3 रकात फर्ज है, ईशा में 4 रकात फर्ज है। इसके अलावा जो उसने हमें अरकान दिए हैं सारी चीजों को बता दिया है। वजू में 4 बातें फर्ज हैं, नहाने में 3 बातें फर्ज हैं, और इसके अलावा शराइते नमाज वो 6 हैं, शराइते नमाज 6 हैं, फराइदे नमाज 7 हैं। सारी चीजों को हिसाब से दिया है। उसने हमें तुम्हें चलने के लिए 2 पैर दिया है, खाने कमाने के लिए 2 हाथ दिया है, बोलने के लिए 1 जबान। ये गया, ये मरा, इसमें कुछ नहीं। वो मशीन धक्का देती रहती है तो वो सांस चलती रहे, और जब तक के मालदार आदमी अगर है तो उससे थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हैं, 1 लाख अभी लाओ, 2 लाख अभी लाओ। हजरत वो हमारे यहाँ जामनगर में एक आदमी था, वो बेचारा मर गया। मैं गया देखने, था मुक्तदी तो जाना पड़े, क्योंकि इमाम आदमी अगर ना जावे तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। गए उसको देखने के लिए तो वो मर चुका था। मैं गया तो डॉक्टर मौजूद था, तो मैंने गौर से देखा, तो मैंने कहा इसको मरे हुए तो लगभग 8-9 घंटे हो गए। डॉक्टर चौंका, बोले कैसे कह रहे हो? तो मैंने कहा वो मर चुका, वो वेंटिलेटर पे डाले हुए था, मशीन धक्का दे रही थी। तो मैंने कहा ये जो सांस चल रही है ये इसकी नहीं है, मशीन की है। तो उसने कहा कैसे? असल में वजह ये थी कि वो दाखिल होने से 1 दिन पहले उसको मर रहा था, अटैक वगैरह की बीमारी आई थी, तो उस 1 दिन 2 दिन पहले वो चेहरा वगैरह बनवा के गया था, वो चेहरा बना लिया था। तो अगर वो जिंदा हो तो ये बाल निकलते रहते हैं, ये बाल दाढ़ी के हैं या मोछ के हैं या सर के हैं। अगर जिंदा आदमी है, सांस चल रही है, भले वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसके ये बाल हैं, निकलेंगे, नाखून बढ़ेंगे और चमड़ी में ताजगी रहेगी। तो मैंने उसको गौर से देखा, मैंने कहा ये बाल तो निकले ही नहीं है इसको, ये तो मरे हुए 8-9 घंटे हो गए। तो डॉक्टर बगल में ले गए और ले जाने, उनसे बहुत पैसा ले लिया था, वो चंदा वंदा देते भी नहीं थे, ज़कात भी नहीं निकालते। तो मैंने कहा अच्छा किया है इसने, आधा पड़े 100-200 हम लोगों को मिल गए, हम लोग भी खुश। जान बच्चे लाखों का आए, लौट के बुद्धू घर को आए, हम लोगों को क्या है? तो ये ऐसे ही है, ये इसमें वो सेल लगा के कितनी देर खींचेगा? हम बोलेंगे आपका टाइम भी निकल जाएगा, तकरीर भी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। और इतना पैसा आप खर्च किए हैं, वो तो कारी साहब जाने, कारी नसीर साहब किबला, जिन्होंने भाग दौड़ किया और ज़मीन आसमान बिल्कुल एक कर दिया, इंतज़ाम किए खाने का शानदार। अभी हम लोग तो खाए नहीं, हो तो कैसा खाना है वो तो बाद में पता चलेगा। वेटरस वाले तो अच्छा बनाते हैं। ये बहरहाल शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا كريم सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ने اللهم صل على سيدنا وشفيعنا नबीना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने सारी चीजों को हिसाब से दिया है। आप देखें सारे अरकान उसने हिसाब से दिया है। उसने हमें बोलने के लिए जबान दिया है, एक दिया है, सुनने के लिए दो कान दिया है, इसके अलावा चलने के लिए पैर दिया है, हाथों की खूबसूरती के लिए उसने 5-5 उंगलियां उगाई हैं, उंगलियों की खूबसूरती के लिए उसने नाखून को पैदा कर दिया है, पैर की खूबसूरती के लिए पैर में उंगलियां उगाती हैं और चलने के लिए कुव्वत दी है, दिलो दिमाग सही सलामत बनाया है, पागल नहीं बनाया है। अगर हाथ की कीमत जानना चाहें किसी लूले से पूछें, पैर की कीमत क्या होती है किसी लंगड़े से पूछें, जबान की कीमत क्या होती है किसी गूंगे से बात करके देखें, खुद ही गूंगा बन जाना पड़ता है। कान की कीमत क्या होती है, सुनने का अंदाज क्या होता है, वो किसी बहरे के पास जाएं तब आपको एहसास हो जाएगा। आंख की कीमत क्या होती है किसी अंधे से पूछें। इन सारी नियामतों से नवाजा और नमाज करके वो रहीम और करीम परवरदिगार फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदे तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं, वश्कुरूनी वला तकफुरून, और तू मेरी दी हुई नियामतों की शुक्रिया अदा कर, वला तकफुरून, ना फरमानी ना कर, वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नियामतों की शुक्रिया अदा करोगे हम तेरी नियामतें और बढ़ा देंगे। बेशक सुभान आला हज़रत सरकार ने फरमाया था, जिसके खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिल लौ में खोना तुझे, जिसके खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, तरसे करम शुक्र खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिल लौ में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हमारी आपकी जो गैरत मरी है, आज देख लें, आपके यहाँ शायद हो, वरना कोई बड़ी कॉलेज जिसमें हमारे बच्चे पढ़े, कोई डिग्री लें, कोई बड़ी ऐसी स्कूल हो जिसमें बच्चे तालीम लें, दीनी तालीम भी हो दुनियावी भी तालीम हो। हम मुसलमानों के महल्ले में ये स्कूल नहीं होती है। हमारे बच्चे 10 किलोमीटर दूर जाएंगे पढ़ने, 20 किलोमीटर दूर जाएंगे पढ़ने। हमारे मदरसे में वो दुकान के परचून की तरह वो चंदे इकट्ठा करके किसी तरह से 10-10, 20-20 बच्चों के मदरसे होते हैं। अब बताइए उसमें मौलवी क्या पढ़ाएगा? ये वहां स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं 8 घंटा, 5 घंटा वहां टाइम देते हैं, और हम अपने दीनी तालीम के लिए बच्चों को मौलवी को रख लेते हैं, और 1 घंटा पढ़ाने के लिए मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा। अब बताइए मौलवी उतनी देर में हम लोग उन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, और वो बच्चे पढ़ेंगे क्या? हमारे आपके महल्ले में कोई स्कूल नहीं, हमारे आपके महल्ले में कोई कॉलेज नहीं, सारी स्कूलें उनके महल्ले में, सारी कॉलेजें उनके महल्ले में, और फिर उसके बाद हमारी डिग्री भी वहां से होती है। हम उनके दिए हुए यूनिफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, हम उन लिबासों को पहनते हैं जो वो हमें बताते हैं, हम उसी पर चलते हैं। उसके बाद आकर के महफिलों में बैठते हैं और हजरत से दुआ करवाते हैं, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, हम पर बर्बादी छाई हुई है, हजरत अल्लामा रईसुल कादरी साहब किबला आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम अल्लाह हमारे लिए फदाए बदर पैदा कर दे, हमारे दुआओं में असर हो जाए। हमें हमारी दुआओं में असर होना तो बहुत दूर की बात है, हमारी दुआएं हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। आज हरामखोरी और जितनी बदमाशी हम लोगों के अंदर पाई जा रही है, शायद किसी काम में पाई जा रही हो। आज सारी गलतियां हम और आप करते जा रहे हैं, फिर भी दुआ मांग रहे हैं। हमारी ना कोई दुआ कबूल हुई थी ना हो रही है। आज दुनिया में हम और आप कासे गदाई लिए दर दर घूम रहे हैं, कोई सूखी रोटी का टुकड़ा डालने को तैयार नहीं है। पूरी रात हम जागते हैं और सुबह फज्र से सोते हैं, 2 बजे दिन में उठते हैं, फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम आराम कर रहे थे। ये आराम नहीं है, ये हमारी मौत है, जो मरने से पहले हम मर चुके हैं। सारा मसूद गांधी ने यही पैगाम दिया था। 18 साल जवानी को राह खुदा में कुर्बान किया, यही पैगाम दिया था। हम और आप अपने बच्चों को ना उनको नमाज का तरीका, ना उनको रोजे का तरीका, बाप का इंतकाल हो गया, बेटे को जनाजे की दुआ ही नहीं याद है, तो फर्ज किफाया है, इमाम साहब पढ़ाते हो गई जनाजे की नमाज। नमाज के अरकान पूछने वो पता नहीं है, रोजे के मसाइल पूछने वो नहीं जानता हमारे कौम का नौजवान। वजू के फराइज पूछने की वजू कैसे किया जाए
تو نل کھول کر کے پانی وہ انڈیلنا جانتا ہے لیکن وضو کے فرائض نہیں جانتا ہے. اور ہم رونا روتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پیٹے جا رہے ہیں, ہم کاٹے جا رہے ہیں. کلمہ ہم نے پڑھا ہے, اب ساری چیزیں ہم پر آ رہی ہیں, ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. اور کلمہ جب پڑھا ہو رسول اللہ کا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فرمان مصطفیٰ پہ عمل کریں اور زمانے میں چلیں تو زمانہ ہمیں دیکھ کر کہہ دے کہ یہ نبی کا غلام جا رہا ہے, نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نام اللهم صل على سيدنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں, بچوں کو ہم ان کو تعلیم سے قریب کریں اور ان کو اسلامی لباس پہننے کا طریقہ سکھائیں. سرکار غازی پاک کا یہ پیغام ہے, آج پورا زمانہ ان کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے. زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی. مٹائی ظلمت باطل, اجالا حق کا پھیلایا, تو باغے سرمدی کا دیدہ و ریحان ہے غازی. اذانیں ہوں, نمازیں ہوں, مساجد ہوں, مدارس ہوں, یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی. غنی جائے, مریض آئے, شفا پائے. فقیر آئے, غنی جائے, مریض آئے, شفا پائے, تیرے دربار علی کی ادنا شان آئے گا. آج بھی حضرت سید سالار مسعود غازی کے آستانے سے ہر سال جیٹھ میلے کے موقع پر 7 اندھے جن کی بینائی جا چکی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سرکار غازی پاک کے صدقے میں انہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرماتا ہے. 7 کوڑوں کو شفا ملتی ہے, یہ تو میلے کے موقع پہ ملتی ہے, اور ویسے تو پورے سال لوگوں کو شفا ملتی رہتی ہے. کوئی جنزیر میں بندھا ہوا آ رہا ہے, کوئی رسی میں بندھا ہوا آ رہا ہے, کسی کو گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے, کوئی روتا ہوا آ رہا ہے. پورے دن رات دن مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے, ہر کوئی آ رہا ہے. سفید داغ والوں کو شفا مل رہی ہے, اندھوں کو آنکھیں مل رہی ہے, بانجھ عورتوں کو اولادیں عطا ہو رہی ہیں. فقیر آئے, غنی جائے, مریض آئے, شفا پائے, تیرے دربار علی کی یہ ادنا شان ہے غازی. تیری گلیوں میں دیکھا ہے جناب خضر کو اکثر, نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مسعود غازی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سید سالار مسعود غازی کا آستانہ ہے جہاں پر ہر کوئی جاتا ہے, مانگنے کے لیے جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, آستانے مسعود غازی پر ہائیڈرس والوں, بہرائچ گونڈا والوں, آپ تو بارہا جا چکے ہو اور دیکھے ہوگے کہ جس پانی میں کوڑی نہاتے ہیں, جن کو کوڑ کا مرض ہوتا ہے, تو اس میں تو یہ بات کسی حد تک لوگ مان سکتے ہیں کہ غسل, مدار کے غسل کا پانی وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. جس میں کوڑی نہاتے ہیں انہیں شفا ملتی ہے, لیکن جس میں سفید داغ والے وضو نہاتے ہیں وہ پانی نہ مدار سے ہو کے آتا ہے اور نہ وہاں غسل کا پانی آتا ہے, بلکہ رجب سالار مسجد کا وضو خانہ ہے. اس وضو خانے سے جو عام زائرین جاتے ہیں وہاں وضو کرتے ہیں, وہ ہمارے آپ کے وضو کا دھون کا پانی بہ کر کے نالے میں جاتا ہے, اور اس نالے میں بیٹھ کر کے سفید داغ والے نہاتے ہیں. وضو ہم بناتے ہیں, پانی ہمارے آپ کے بدن سے لگ کر کے جاتا ہے, نہ پانی وہ سالار مسعود غازی کے مدار سے جا رہا ہے لگ کر کے, نہ کسی اور مدار سے ٹچ ہو رہا ہے. لیکن فیضان غازی کا یہ عام فائد ہے, یہ آپ کی کرامت ہے, یہ آپ کے ماننے والے جہاں جس پانی سے وضو کرتے ہیں اس پانی میں سفید داغ والے نہاتے, اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے. آستانہ مسعود غازی ہے جہاں پر اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں اور کوڑھوں کو شفا ملتی ہے, بے اولادوں کو اولادیں ملتی ہیں. آپ کی کرامت ہے, اور آپ کی سمانے تو بڑی لمبی ہے, وہ ذہن میں ساری باتیں تھیں لیکن وقت نے بالکل نچوڑ کے جکڑ کے رکھ دیا. بہرحال پھر کبھی زندگی وفا کرے گی, ہم لوگ زندہ رہیں گے تو کبھی ایسی کوئی بات ہوگی اور اس پر روشنی ڈالی جائے گی. اور یہی نہیں, ہر کوئی جاتا ہے اپنے برائے, اپنے سے زیادہ, ان سے اپنے سے زیادہ تو وہ آتے ہیں, اور اپنوں میں جاہلوں سے زیادہ علماء کی جماعت آپ کی بارگاہ میں آج ہے بہرائچ
शरीफ वालों को। आखिर में सिर्फ एक बात, वो मुफ्ती शाबान साहब किबला जो बलरामपुर के रहने वाले थे, उन्होंने अपने जिंदगी के हाल को खुद लिखवाया, जो उनके साथ उन पर गुजरी और जो कुछ उन पर बीता वो खुद वो लिखवाए, और वो करामाते गादी की शक्ल में वो किताब, वो करामत शाये हुई, आज तक वो किताब में दर्ज है। मुफ्ती शाबान साहब किबला फरमाते हैं कि मैं मुंबई से घर गया, और घर जाने के बाद में हमारी दो बच्चियां थी, एक 5-6 साल की थी, एक हमारी छोटी बच्ची थी दो साल या 2.5 साल की थी। बरसात का मौसम था। वो फरमाते हैं कि मैं घर गया, घर जाने के बाद में 2-3 दिन रहा, फिर एक दिन मैं अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर के और अपने मकान के छत पे मैं बच्ची को लेकर के खिला रहा था। मेरे गोद में मेरी छोटी बच्ची उछल रही थी और बड़ी बच्ची की मैं उंगली पकड़े हुए, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं छत पे टहल रहा था। मेरी छोटी बच्ची बार बार, छोटे बच्चे उछलते ही रहते हैं, वो फरमाते हैं कि मेरी बच्ची बार बार मेरे गोद में उछलती रही। मैं संभालता रहा, लेकिन मेरा ध्यान भटक जाता है। एक मर्तबा मेरी बच्ची छोटी वाली मेरे गोद में उछली और मैं उसे संभाल न सका, और उछलते ही हमारी बच्ची हमारे गोद में आने के बजाय मकान के छत से नीचे जमीन पे गिर जाती है। बच्ची का गिरना था, सर में चोट आती है, बच्ची बेहोश हो जाती है, और जब बच्ची बेहोश हो जाती है, आप फरमाते हैं मैं रोते चिल्लाते हुए जीने से मैं नीचे आया। आने के बाद मेरी अहलिया भी दौड़ी, मैं भी दौड़ करके गया, लेकिन मेरी बच्ची बेहोश हो चुकी थी। मैं लेकर के इलाज के लिए दवाखाने गया, डॉक्टर से इलाज करवाया, तो डॉक्टर ने दवा इंजेक्शन दे दिया। अब उसके नतीजे में थोड़ी देर के लिए बच्ची को होश तो आ गया, लेकिन अब उसका मामला जिंदगी का ये बन गया कि मेरी बच्ची खेलते खेलते जमीन पे अगर जरा सी गिर जाती या उसे ठोकर लग जाती तो वो फौरन बेहोश हो जाती। वो फरमाते हैं कि जैसे बेहोश हो जाती, घर में रोना चिल्लाना शुरू हो जाता। आप फरमाते हैं फिर मेरी अहलिया ने कहा अब सब काम दवा से नहीं चलेगा, कुछ दुआएं भी करवा लीजिए। आप फरमाते हैं मैंने बलरामपुर की जमीन पर भी तमाम लोगों से तावीज़ें बनवाई, मैंने गोंडा जा करके बड़े बड़े लोगों से मैंने दुआएं करवाई। खुद मौलवी थे, मौलवियों से अच्छे ताल्लुकात थे, लोगों ने अच्छी अच्छी तावीज़ें दी, किसी ने पानी दम करके दिया, किसी ने तावीज़ बना करके दिया। आप फरमाते हैं मैं पहनाता रहा, दुआ और दवा दोनों साथ में करता रहा। मेरी बच्ची को शिफा तो मिलती, लेकिन 1 महीने 2 महीने में खेलते खेलते आप फरमाते हैं कि जैसे उसे ठोकर लगती वो जमीन पे गिरती और बेहोश हो जाती। अब उसके जिंदगी का ये मामूल बन चुका था। आप फरमाते हैं मैं मुंबई चला आया और मुंबई यहाँ ड्यूटी दिया, और यहाँ से उसके बाद छुट्टी में फिर मैं बरसात के मौसम में घर गया, तो मेरे सामने ही मेरी बच्ची खेल रही थी, और घर में खेलते खेलते अचानक उसके सर में चोट लगी, और जब वो बेहोश हो जाती है तो अब हमारी बच्ची लगभग 3-3.5 साल की हो चुकी थी। वो फरमाते हैं जब मेरी बच्ची जब 3.5 साल की हो गई थी और वो बेहोश हो जाती है, तो फरमाते हैं मेरी बीबी ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। हमारे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बेटी का मामला था, बच्ची का मामला था। अगर ये मर्ज खत्म नहीं होता है तो मामला बिगड़ता जाएगा, और आगे कैसे इलाज होगा। तब तक के मेरी बीबी ने, वो फरमाते हैं ये बात मेरे दिल पे तीर की तरह असर कर गई, चुभ जाती है। वो फरमाते हैं मेरी बीबी ने कहा कि मुफ्ती साहब किबला हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाएं ले ली हैं, हमने तमाम बाबाओं से तावीज़ें बनवा ली हैं, लेकिन हम अपने आका सैयद सालार मसूद गादी की बारगाह में नहीं गए हैं, जहां से ज़माना फैल पा रहा है, जहां से अंधों को आंखें मिल रही हैं, कोड़ों को शिफा मिल रही है, बीमारों को शिफा मिल रही है। हम उनकी बारगाह में नहीं गए हैं, चलो हम उनकी बारगाह में चलते हैं, वहां हाजिरी दे। हो सकता है हमारे दिन खिल जाए, हमारी बच्ची को जिंदगी की भीख मिल जाए। मैं फौरन मैंने कहा इस वक्त तैयार हो जाओ। फौरन एक बैग में फरमाते हैं मैंने झोले में सामान भरा और बच्चे को गोद में लिया। मैं आगे आगे, बीवी पीछे पीछे, सीधे आया बस स्टैंड, और वहां से बस पकड़ा। बस के जरिए से मैं सीधे बहराइच शरीफ आया। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। आप फरमाते हैं मैं पहुंच करके सीधे सालार मसूद गादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिरी के लिए हम बढ़ते गए। हमने वजू किया, बीबी ने भी वजू किया, हमने अपने दोनों बच्चियों को वजू कराया, और वजू करा करके वो फरमाते हैं कि मैं बच्चे को लेकर के चला। हमारी छोटी बच्ची जिसको मैं शिफा के लिए ले गया था, किसी अकीदतमंद से अतर की शीशी से अतर गिर गई थी, और वहां पर वो जमीन पर अतर फैली हुई थी। आप फरमाते हैं मेरी बच्ची मेरे हाथ को छोड़ देती है और बढ़ती जा रही है, जबान से कहती जा रही है बाबा सलाम, बाबा सलाम, दादा सलाम, बाबा सलाम, वो कहती जा रही है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं ऐसे
बेटी को बुला रहा हो, कोई किसी को मेरी बच्ची देख रही हो। आप फरमाते हैं मेरी बच्ची दौड़ती चली जा रही थी, अचानक उस अतर पे पैर पड़ता है, मेरी बच्ची के कदम फिसलते हैं और फिसलना था, सर जाकर मज़ारे सैयदे सालार मसूद गादी से टकराया और टकराना था। मेरी बच्ची बेहोश हो जाती है और जब बेहोश हो गई तो मैंने फौरन बीबी से कहा अब उठाने की जरूरत नहीं है, जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद आका मसूद गाजी देख रहे सुभान हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान हमें अल्लाह। उठाने की जरूरत नहीं है, जिस हम बीमारी को लेकर के दुआ मांगने आए थे वो हमारे आका सैयद सालार मसूद गाजी खुद देख रहे हैं। बेशक वो फरमाते हैं मैंने बच्चे को छोड़ दिया, मरीज आए शिफा पाए, फकीर आए गनी जाए, मरीज आए शिफा पाए। आप फरमाते हैं मैंने बीवी से कहा तू अलग खड़ी हो जा, वो अलग बाहर निकल के खड़ी हो जाती हैं। आप फरमाते हैं मैं कुरान की आयतें तिलावत करता रहा, दुरूद व सना पढ़ता रहा। मुजावर ने भी देखा मेरी हालत को, वो भी खामोश हो जाते हैं। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप इसी मर्ज के लिए आए थे, आप बच्ची को हाथ ना लगाइएगा। आप फरमाते हैं मैंने रोते हुए सरकार गाज़ी पाक के मदार मुकद्दस की चादर को थामा और थाम करके अर्ज किया हुजूर मैं जिस मकसद के लिए आया था, ये हमारी बच्ची जो आपके घर की कनीज है, जो आपके घर की खादमा है, हुजूर अगर इसे जिंदगी दे तो आपकी रहमतों का हिस्सा हो, वरना इसे ले लें, अब ये दुख देखा नहीं जा रहा है। आप फरमाते हैं 15 से 20 मिनट तक हम ये दुआ मांगते रहे और 20 मिनट के बाद मेरी बच्ची उठकर खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई भाग करके मेरे गोद में आई और मैं जो सलाम पढ़ रहा था मेरी बच्ची भी अपनी तूतली जबान में वो सलाम पेश करती रही। वो फरमाते हैं तब से लेकर आज तक मेरी बच्ची 10 साल की हो गई है, लेकिन कभी चोट तो बहुत दूर की बात है, बेहोशी बहुत दूर की बात है, कभी उसके सर में दर्द भी नहीं। ज़मीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गादी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गादी। फकीर आए गनी जाए, मरीज आए शिफा पाए, तेरे दरबार आली की यादना शान है गादी। तेरी गलियों में देखा है जनाबे खिस्र को अक्सर, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गादी। दिखा दो चांद सा चेहरा मुझे भी ख्वाब में आका, दिले आरिफ में मुद्दसे यही अरमान है। अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ है कि मौला ताला हम सभी लोगों को अपने आका मसूद गादी से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये पैकेट्स वाले जिन लोगों ने अपनी मेहनत गाढ़ी कमाई इसमें खर्च की है, अल्लाह ताला सबकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोगों से उलमा से हम लोगों को अपने उलमा फक़हा से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।